Hello friends, I am Nisha Sharma, Associate Professor, Department of English. Let's continue our topic on tenses. Yesterday we made a study of tenses in pairs, and the first pair was present simple and present perfect, present continuous, sorry. We made the study of this pair, and today we study the pair, second pair, present perfect and past simple. Now, present for perfect and past simple, both these tenses have one thing in common. That is, both of them refers to an activity or event which happened in the past, but with a difference. Present perfect describes the effect or impact of that activity on the present. The past simples does not. The forms of present perfect are use of, has, have, plus past participle, or to say third form of the verb. प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में हम हैज हैव का यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसे कार्य का दर्शाता है जो वर्तमान में शुरू होकर वर्तमान में पूरा हो चुका है। पास्ट सिंपल के फॉर्म्स हैं वर्ब के यूज ऑफ, was, verb and past tense form, past tense of verb, or to say second form of verb, second form of verb. पास्ट टेंस में हम was और verb का यूज करते हैं और साथ में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए हैज और हैव के यूज में व्हाट इज द डिफरेंस? हैज इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर इज ही, शी, इट एंड व्हाटएवर द नेम इज। दूसरा हैव है वो आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ में हम हैव का यूज करते हैं। इसी तरह I was, he was, you were, they were, इनके थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में और साथ में I के साथ में हम was का यूज करते हैं। बाकी के साथ में प्लूरल्स के साथ में और you के साथ में हम were का यूज करते हैं और साथ में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। अब देखिए पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट के डिफरेंस को हम डायग्राम के थ्रू स्टडी करते हैं। लाइक नाउ, पास्ट, फ्यूचर। Past simple refers to an activity which happened in the past, past activity, event which took place in past. It doesn't have any relation with the present. So this is past simple. Second is present perfect. Past, फ्यूचर। पास्ट में एक्टिविटी हुई बट इट इज अफेक्टिंग आवर प्रेजेंट। ये है प्रेजेंट परफेक्ट।
एक चीज दोनों में कॉमन है, बोथ रेफर्स टू अ पास्ट एक्टिविटी। और डिफरेंस क्या है, पास्ट की एक्टिविटी का सिंपल पास्ट में प्रेजेंट पे इम्पैक्ट नहीं रहता और प्रेजेंट परफेक्ट में इम्पैक्ट होता है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। लाइक आई रॉट अ बुक, मैंने एक बुक लिखी, एंड इट मीन्स इट इज अ स्टोरी ऑफ पास्ट, अतीत की बात है। और मैं कहती हूँ आई हैव रिटन अ बुक, अभी मैंने लिखी है, इट इज अफेक्टिंग माई प्रेजेंट, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, मैं पब्लिश कराना चाहती हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ। लाइक आई लॉस्ट माई पेन, आप कोई पास्ट के इंसिडेंट बता रहे हैं कि आपका पेन खोया था और मैंने आपसे कहा राइट द आंसर, और आप कहते हैं मैम आई हैव लॉस्ट माई पेन, मीन्स ड्यू टू द लॉस ऑफ पेन इन द पास्ट यू आर नॉट इन द पोजिशन एट प्रेजेंट टू राइट, तो योर पास्ट इज अफेक्टिंग योर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। एंड योर पास्ट इज टोटली अ स्टोरी ऑफ पास्ट, इट डजंट हैव इट्स इफेक्ट ऑन प्रेजेंट, this is past simple. Next combination is past simple and past perfect. Past simple and past perfect. Now again there is one thing common between this group. Both refers to an activity, event, situation that took place in past. But the difference is past perfect refers to two point of action in the past. 2 point of action which are known as pre-past and past. Pre-past and past. Two things happen in past, one thing happened before another thing. And these both past and pre-past are related with each other just as they were related in present perfect continuous as past and present. These two activities of past are related with each other. They are affecting each other. Just as the loss of pen in the past is affecting the present. And past simple, you know, it normally describes an activity which happened in past. It doesn't have any relation with the present. You know the formation of past, use of past simple was verb plus second form of verb. And in past perfect continuous, past perfect, we make use of had plus third form of verb. And the classic example of past perfect is the patient had died when the doctor arrived. Two things happen in the past, death of the patient and reaching of the doctor. But which happened earlier? The death of the patient happened earlier, and the activity which took place earlier would be presented by past perfect, had plus third form of the verb. The patient had died when the doctor arrived, and the other activity would be referred as simple past. और दोनों एक्टिविटीज आपस में कैसे रिलेटेड है यहाँ पर? ड्यू टू द लॉस ऑफ पेन यू आर नॉट एबल टू राइट इन प्रेजेंट, ड्यू टू द डॉक्टर्स लेट रीचिंग द पेशेंट डाइड अर्लियर. सो दिस थर्ड पेयर इज पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल. वी कैन ऑल्सो शो इट डायग्रामेटिकली. Now, past, future. अब देखिए, if you put a cross here, it is simple past. An activity took place in past. It doesn't have effect on anything other. But if you put this mark in this way, means two activities took place in past, one earlier than the other.
and the earlier one is expressed with past perfect, had plus third form of the verb, and the next is referred with simple past. So we have studied these three pairs of tenses. Now the other remaining forms would be done by us. We have done present simple, present perfect, and now simple present, and now we'll do present perfect continuous. Present perfect continuous. Present perfect continuous. Just as its name suggests, it refers to an activity which began at some point in past and is still continue when we are talking about. जब हम बात कर रहे हैं तब भी वो जारी है और वो पास्ट में किसी समय शुरू हुई है, और इसका फॉर्म क्या है? हैज, हैव प्लस बीन प्लस ing form of the verb. अब देखिए, परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैज और हैव का, प्रोग्रेसिव में यूज करते हैं हम वर्ब के ing फॉर्म का, साथ में यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यूज ऑफ बीन, हैज, हैव, बीन। अब इसके अंदर आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो एडवर्ब्स हम नॉर्मली यूज करते हैं वो कौन सी होती है? एडवर्ब्स का यूज होता है सिंस, फॉर, मेन इनके एडवर्ब्स का हम यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देखिए हम, आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 5th September। I have been teaching here, मैं यहाँ 5 सितंबर से पढ़ा रही हूँ। तो मीन्स मेरा पढ़ाने का काम लास्ट मंथ में 5 सितंबर को शुरू हुआ and is still in progress and would likely to continue further। तो ऐसी एक्टिविटी को रेफर करती है which began at some time in the past, is still going on and is likely to continue। इसके बाद हमारा हमने सिंपल पास्ट कर लिया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्म आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस रेफर्स टू एन एक्टिविटी which was in progress at some time in past। ऐसा कार्य जो कि अतीत में किसी समय जारी था, और इसके लिए जो हम फॉर्म यूज करते हैं वो क्या है? was, were प्लस ing फॉर्म ऑफ द verb। अब इसमें हम इसके एग्जांपल्स इसमें हम एडवर्ब्स यूज करते हैं when, while, एडवर्ब when, while। लाइक इसका एग्जाम्पल हम दें, दे वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई मेट। जब मैं उनसे मिला, मिलना कब हुआ? पास्ट में। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो उस समय उनका क्रिकेट खेलना जारी था। कई बार यहाँ पर ऐसे एक्शन को भी डिस्क्राइब किया जाता है जो दूसरे एक्शन के लिए बैकग्राउंड का काम करता है। लाइक शी लॉस्ट हर ईयरपिन्स when she was playing। बैकग्राउंड क्या है? वो खेल रही थी, तो ये बैकग्राउंड एक्शन है, और उस समय क्या हुआ? she lost her earphones। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट यूज जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस का, वो क्या है? when we change a sentence from present continuous into indirect speech, from direct into indirect speech, it becomes past continuous। जब डायरेक्ट स्पीच के किसी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो
पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। लाइक he said I am writing a letter, उसने कहा मैं पत्र लिख रहा हूँ। और जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या होगा, he said that he was writing a letter। तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट हम देख चुके हैं, और अब इसमें हमारा एक फॉर्म और बचा है, दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की फॉर्म क्या है, हैड प्लस बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड प्लस बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए, just as present perfect continuous refers to an action which began at some time in the present past and was in progress in present, उसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक ऐसे कार्य के बारे में बताता है जो कि पास्ट में किसी समय चालू होकर जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय जारी था। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, I had been teaching in government college for 4 years when he joined there in 2005. I had been teaching in government college. मैं गवर्नमेंट कॉलेज में 15 साल से पढ़ा रही थी। मीन्स माई एक्टिविटी इन पास्ट एंड वॉज स्टिल गोइंग ऑन इन प्रेजेंट। जिस समय जब उन्होंने 2005 में ज्वाइन किया, तो 2005 में ज्वाइन किया वो पास्ट की घटना है, और उस समय भी क्या हुआ था, मैं वहाँ पिछले 15 वर्ष से पढ़ा रही थी। मीन्स पास्ट में भी थी और उस समय भी मेरा पढ़ाना जारी था। He had been writing a book for the past 1 year when she met him last year. वो पिछले 1 वर्ष से किताब लिख रहा था जब मैं पिछले वर्ष उससे मिली। तो लिखना उसका 1 वर्ष से चालू था, जारी था, और अभी भी कॉन्टिन्यूअस था। तो ये हमारे पास्ट और प्रेजेंट टेंसेस हो गए। इसके बाद मैंने आपको बताया था